Chalo, let us see the next question. Chalo, let us see the next question. It's Entertainment Limited, an Indian amusement company, is happy with the success of its water park in India. The company wants to repeat its success in Nepal, also where it is planning to establish a grand water park with world-class amenities. Company is also encouraged by a marketing research report on which it has just spent an amount of 20 lakhs. The cost of construction would be 450 crore Nepalese rupees, and it would be completed in, highlight the portion, 1 year's time. यानी 1 साल लगेगा ये amusement park बनाने में. Half of the construction cost will be paid in the beginning and the rest at the end of the year. In addition, working capital would be 65 Nepalese crore rupees from year end 1. The after-tax realizable value of the fixed asset after 4 years of the operation is expected to be 250 crore Nepalese rupees. Under foreign capital encouragement policy of Nepal, the company is allowed to claim 20% depreciation allowance per year on reducing balance basis, subject to maximum capital limit of rupees 200 crore. यानी 200 करोड़ से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम लोग आपको डेप्रिसिएशन अलाउंस देंगे नहीं. The company can raise loan for the theme park in Nepal at the rate of 9%. नेपाल से अगर हमने लोन लिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है हमको 9%. The water park will have a maximum capacity of 20,000 visitors per day. On an average, it is expected to achieve 70% capacity for the first operational 4 years. Entry ticket is expected to be 220 Nepalese rupees per person. In addition to entry ticket, so entry revenue, the company could earn revenue from sale of the food and beverages and fancy gift items. The average sales expected to be 150 Nepalese rupees per visitor for food and beverages and 50 Nepalese rupees per visitor for fancy gift items. The sales margin on the food and beverages and fancy gift item is 20% and 50% respectively. The park would remain open for 360 days in a year. Annual staffing cost would be 65 crore per annum. Insurance cost 5 crore. Other running and maintenance costs are expected to be 25 crore in the highlight the portion first year of operation, which is expected to increase by 4 crore Nepalese rupees every year. The company would apportion existing overhead to the tune of 5 crore Nepalese rupees to the park. All cost and receipt, highlight the portion, excluding construction cost, asset realizable value, and other running and maintenance cost are mentioned above are at current prices. That is 0 point of time. यानी उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है रियल कैश फ्लोस. रियल कैश फ्लोस का मतलब ये है कि उसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट हमने ध्यान में लिया नहीं है. Which are expected to increase by 5% per year. तो वो 5% से बढ़ेगा. The current spot rate is 1.60 Nepalese rupees per rupee. Tax rate in India is 30%, while in Nepal it is 20%. Current weighted average cost of capital of the company is 12%. The average market return is 11%,
and interest rate on the treasury bond is 8%. The company's current equity beta is 0.45. The funding ratio for the water park would be 55% equity and 45% debt. Being a tourist place, amusement industry in Nepal is competitive and very different from its Indian counterpart. The company has gathered the relevant information about its nearest competitor in Nepal. The competitor's market value of the equity is 1850 Nepalese rupees in crores and the debt is 510 Nepalese currency, that is rupees crore. उसका इक्विटी बीटा दे रखा है 1.35. State whether Entertainment Ltd should undertake the water park in Nepal or not. That is the question. I request you to go through the question, please. Again, friends, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है. तो अगेन मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं ये क्वेश्चन को एक साथ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पार्ट्स में समझाता हूँ और फिर मैं आपको करवाता हूँ. फ्रेंड्स, एक कॉन्सेप्ट आता है आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बहुत ही एक आपका सिंपल चैप्टर है. उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी. वो कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे से अप्लाई करने का है. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, रीड दिस पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन. The competitor's market value of equity is 1850 crores of the Nepalese rupees and debt is 510 crore. और उसका इक्विटी बीटा दे रखा है. तो टेक्निकल लैंग्वेज में फ्रेंड्स इसको बोला जाता है, लिसन केयरफुली, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है बीटा ऑफ लीवर्ड इक्विटी. तो उसको सबसे पहले हमको बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी में कन्वर्ट करना होता है. उसके बाद हम लोग जैसे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर रखने वाले हैं ना, उस हिसाब से बीटा ऑफ द लीवर्ड इक्विटी कैलकुलेट किया जाता है और फिर हम लोग यहाँ पे हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं. ये जो हमारा अभी का इंफॉर्मेशन दे रखा है ना, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या तो ये हमारा अभी का इक्विटी बीटा, वो सब इंफॉर्मेशन का कोई भी यूज होता नहीं है. चलो, तो जो स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो एक बहुत ही आसान चैप्टर है वो हो गया है, वो लोग ये वर्किंग नोट समझ पाएंगे. बाकी के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट होगा. चलो, राइट एंड आंसर द क्वेश्चन. स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. उस पे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी. फ्रेंड्स, उसको बीटा ऑफ द असेट भी कहा जाता है, उसको बीटा ऑफ द असेट भी कहा जाता है. सो बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी फाइंड करने का एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है. इट इज बीटा ऑफ लीवर्ड इक्विटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस डेट इंटू 1 माइनस टी अपॉन इक्विटी. तो ऐसा करके हमको एक सिंपल फॉर्मूला यूज करना है. तो यहाँ पे जो प्रॉक्सी फर्म का इंफॉर्मेशन है ना फ्रेंड्स, वो ऐसा दे रखा है. उनका इक्विटी का वैल्यू है 1850, उनका डेट का वैल्यू है 510. तो देखो, उनको इक्विटी का वैल्यू दे रखा है 1850, डेट का वैल्यू दे रखा है 510. तो इन दोनों का टोटल किया जाएगा, इन दोनों का टोटल आता है 2360.
और उसके बेसिस हम लोग वेट कैलकुलेट करेंगे। It is 0.7039, sorry, 7839, and it is 2161. तो ऐसा करके इसको सबसे पहले फाइंड किया जाएगा। अच्छा, ना बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी के लिए ये जो छोटा सा फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन भी हम लोग समझेंगे हमारे सिंपल चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। इक्विटी बीटा दे रखा 1.35, डिवाइडेड बाय 1 प्लस डेट फाइनेंसिंग हमको दे रखा है 0.2161, 1 माइनस टैक्स रेट हमको दे रखा है, नेपाल का है 20%, डिवाइडेड बाय इक्विटी का प्रपोर्शन है 0.7839। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाएगा, 1 माइनस 0.2 यानी 0.8, उसको 0.2161 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो हमारे पास न्यूमरेटर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.7839, so it comes to 1.2205। न्यूमरेटर है 1.35, so 1.35 divided by 1.2205, so 1.1061। फ्रेंड्स, इसको टेक्निकली बोला जाता है बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी। बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि अगर हमने डेट फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस नहीं किया तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का हमसे एक्सपेक्टेशन क्या होगा, उसको बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी कहा जाता है। दिस इज बीटा ऑफ unlevered equity। Then this is beta of levered equity। ऐसा होता है। नाउ हम लोग जैसा कैपिटल स्ट्रक्चर रखने वाले हैं ना फ्रेंड्स, उस हिसाब से वी मेक द कैलकुलेशन ऑफ द बीटा ऑफ लीवर्ड इक्विटी। देखो हम लोग कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर रखने वाले हैं, उसका इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे दे रखा है। द कंपनीज फंडिंग रेशियो फॉर द वाटर पार्क वुड बी 55% इक्विटी एंड 45% डेट। तो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ लीवर्ड इक्विटी। उसके लिए फॉर्मूला कैसे किया जाएगा, बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी इज इक्वल टू बीटा ऑफ लीवर्ड इक्विटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस डेट इंटू 1 माइनस 3 अपॉन इक्विटी। तो ये हमको दे रखा है 1.1061।
डिवाइडेड बाय 1 प्लस, देखो हमारा डेट फाइनेंसिंग का प्रोपोर्शन क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 45% और इक्विटी का 55%। So 1.1061 is equal to beta of levered equity divided by, देखो क्या किया जाएगा, 1 माइनस 0.2 यानी होगा 0.8 इंटू 0.45, तो ये न्यूमरेटर हो गया, डिवाइडेड बाय 0.55, तो ये राइट हैंड साइड का पोर्शन हो गया। उसमें क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, उसमें एक ऐड किया जाएगा, तो दैट कम्स टू 1.6545। So beta of levered equity is equal to 1.1061 into 1.6545. 1.1061 into 1.6545. 1.83। तो जितना डेट फाइनेंसिंग हम लोग रखने वाले ना, उस हिसाब से हमारा बीटा ऑफ लीवर्ड इक्विटी क्या होगा वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है। ओके, उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फ्रेंड्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन 3 हिस्सों में दैट इज बाइफरकेट होगा। एक हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दूसरा हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, और थर्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऐसा करके हमको यहाँ पे 3 चीज का वर्किंग करने का है। एज फार एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेशन इज कंसर्न, उसके लिए क्या किया जाएगा, आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। देखो क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 8%, मार्केट का रिटर्न है 11%। So this is 8 plus 1.83, 11 minus 8, 8 plus 1.83 into 3, 1.83 into 3, that is 5.49 plus 8, that is 13.49। ऐसा करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी किया जाएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग, इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस एक्स रेट। ऐसा करके हमको कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग का कैलकुलेशन करना है। देखो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है that say we will be able to take the bank loan at the rate of, देखो यहाँ पे दे रखा है the company can avail, that is can raise the loan from theme park in Nepal at the rate of just 9%। तो हमको 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा है।
So it is 9% into 1 minus 0.20. 9% into 0.8. 712%. लास्ट में हम लोग करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना 13.49 है, वेट ऑफ इक्विटी कितना है फ्रेंड्स, वेट ऑफ इक्विटी है 0.55, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कितना है 7.2, वेट ऑफ डिबेंचर कितना है 0.45, so 13.49 into 0.55, that is 7.42 plus 7.2 into 0.45, that is 3.24. That comes to 10.66. तो हमको डिस्काउंटिंग फैक्टर का इंफॉर्मेशन मिल गया, इट इज 10.66. तो ये मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हमने बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी कैलकुलेट किया। बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी का मतलब ये है that say when there is no debt financing at that time इक्विटी का बीटा क्या होगा, उसको बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी कहा जाता है। उसके बाद बीटा ऑफ लीवर्ड इक्विटी कैलकुलेट किया, उसका मतलब ये है कि जितना डेट फाइनेंसिंग हम लोग रखने वाले हैं उस हिसाब से इक्विटी का बीटा क्या होगा। फिर थर्ड स्टेप में हम लोगों ने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ, थर्ड वर्किंग नोट में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन किया, जिसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऐसा कैलकुलेशन किया। अभी फ्रेंड्स मैं एक वर्किंग नोट प्रिपेयर कर रहा हूं। वो वर्किंग नोट क्या है फ्रेंड्स, वो मैं बताता हूं। क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है दैट से हमको मैक्सिमम 200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही, इतने इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही हमको डेप्रीशिएशन का अलाउंस मिलेगा, ऐसा दे रखा है एट द रेट ऑफ 20% और WDV मेथड्स। इसलिए हम लोग स्टेप नंबर 2 में क्या कर रहे हैं, स्टेप नंबर 2 में वी आर मेकिंग द कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन। चलो प्लीज राइट डाउन आंसर। स्टेप नंबर 2, उसमें कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोस, उसमें वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन यूजिंग WDV मेथड, जो कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है। We understand first year, second year, third year and fourth year. Opening WDV and depreciation. फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो दैट से हमको इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा करने का है। हमको ऐसा दे रखा है दैट से वी आर रिक्वायर्ड टू मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ 450 करोड़, पर वहां की गवर्नमेंट में क्या बोला है कि हम लोग डिप्रीशिएशन आपको 200 करोड़ से ज्यादा के अमाउंट के ऊपर नहीं देंगे। सो वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर 200 करोड़, उसका 20%, 40 करोड़, 160 का 20% 32 करोड़, 128 का 20% दैट कम्स टू 25.6 करोड़, 102.4 करोड़ का 20%
20.48 crore. This is the depreciation from end of year 1 to end of year 4. That's we will be able to claim. Working note number 2. Calculation of. देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है ये संक कॉस्ट के बारे में, हैज जस्ट स्पेंट, ये संक कॉस्ट के बारे में दे रखा है, यानी इसको क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, इसको इग्नोर किया जाएगा। अच्छा देखो, हमको 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें से आधा हमको अभी पे करना है और आधा 1 साल के बाद करने का है, ऐसा हमको दे रखा है। हमको वर्किंग कैपिटल 65 करोड़ का देने का है, ऐसा हमको दे रखा है, दैट इज इन्वेस्ट करने का है। उसके बाद नंबर ऑफ विजिटर्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ वर्किंग डेज हमको क्वेश्चन पे दे रखा है, इट इज 360। यस, यहाँ पे दे रखा 360। तो देखो नंबर ऑफ विजिटर्स दे रखे हैं, हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या होगा वो दे रखा है, एंट्री टिकट, जो एंट्री टिकट है वो हमारा पूरा का पूरा फायदा ही है। फिर ये फूड एंड बेवरेजेस जो है ना, उसका हमको सेलिंग प्राइस दे रखा है और उसका हमको सेल्स मार्जिन दे रखा है 20%। उसके अलावा हमको फैंसी गिफ्ट दे रखा है, उसमें उसका सेल्स प्राइस दे रखा है और से अगेन उसमें हमको मार्जिन दे रखा है, दैट इज ए फैंसी गिफ्ट है और उसमें हमको मार्जिन दे रखा है। फिर हमको स्टाफ का कॉस्ट दे रखा है, इंश्योरेंस का खर्चा दे रखा है, रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा दे रखा है, वो इंक्रीज होगा ऐसा दे रखा है। फिर हमको ये अपॉर्चनमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस दे रखा है, जो अपॉर्चनमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस है उसको भी क्या करना फ्रेंड्स, हमको इग्नोर करना है। व्हाई? बिकॉज एनी allocation, absorption, charge या recovery is not forming part of the relevant cash flows. now ऐसा दे रखा है, all cost and the receipt excluding एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, दूसरा असेट का रियलाइजेबल वैल्यू और तीसरा रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर एट करंट प्राइसेस। यानी हमको क्या दे रखा है, लेट्स हमको ऐसा दे रखा है कि बाकी के सारे रेवेन्यू और बाकी के सारे एक्सपेंसेस इट इज इन द करंट परचेसिंग पावर टर्म, ऐसा दे रखा है हमको। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर depreciation, comma, taxation and running and maintenance cost. यानी मैं एक वर्किंग नोट ऐसा कर रहा हूं, दैट से व्हाट इज द प्रॉफिट बिफोर डिप्रीशिएशन, कॉमा, टैक्सेशन एंड रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। ऐसा क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि फिर इसको क्या हम लोग करेंगे, साथ में ही फिर इन्फ्लेट करते जाएंगे, इस वजह से। तो आई रिक्वेस्ट यू टू राइट डाउन आंसर अलोंग विथ मी। देखो उसमें मैं सबसे पहले लिख रहा हूं एंट्री टिकट। देखो कैसे लिखा जाएगा, 20,000 विजिटर्स का हमारा कैपेसिटी है, 20,000 विजिटर्स का।
उसमें से 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा, यानी इंटू 0.7, ये हमारा एक दिन का विजिटर्स हुआ, इंटू 360, यानी ये पूरे साल का हुआ, इंटू हमको ऐसा दे रखा है कि हमको विजिटर से कितना मिलेगा, 220 नेपाली रुपीस मिलेंगे, यानी इंटू 220। फिर डिवाइडेड बाय मैं कर रहा हूं यहाँ पे 1 करोड़। Why? Because I'll convert this into crores term. देखो 20,000 इंटू 0.7, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया हमने, इंटू 360 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 1 करोड़, that comes to 110.88 करोड़। अच्छा, उसके बाद हमको नेक्स्ट कौन सा दे रखा है फ्रेंड्स, देखते हैं। In addition to entry ticket revenue, the company could earn revenue from sale of food and beverages. तो देखो मैं दूसरा क्या लिख रहा हूं फ्रेंड्स यहाँ पे, contribution on sale of food and beverages, 20,000 into 0.7 into 360, ये तो कॉमन ही रहेगा, into अभी हम लोग पढ़ते हैं एवरेज सेल्स एक्सपेक्टेड टू बी 150 पर विजिटर फॉर फूड एंड बेवरेजेस, यानी एक विजिटर आके 150 नेपाली रुपीस का फूड एंड बेवरेजेस बाय करेगा। सेल्स मार्जिन ऑन द फूड एंड बेवरेजेस इज 20%। यानी क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग इंटू 150 इंटू 0.20, ये जो भी आंसर है उसको हम लोग क्या करेंगे, अगेन 1 करोड़ से डिवाइड करेंगे। आंसर 20,000 इंटू 0.7 इंटू 360 इंटू 150 इंटू 0.20 डिवाइडेड बाय 1 करोड़, 1 2, that comes to 15.12 करोड़। उसके बाद contribution on sale of fancy item, 20,000 into 0.7 into 360 into उसका सेलिंग प्राइस हमको क्वेश्चन में दे रखा है 50 और उसका कंट्रीब्यूशन दे रखा है 50, यानी इंटू 50 इंटू 0.5, so 20,000 into 0.7 into 360 into 50 into 0.5, 12.6 करोड़। तो ये हमारा रेवेन्यू हुआ। उसके बाद हमको दे रखा है एक्सपेंसेस, यहाँ पे दे रखा है एनुअल स्टाफिंग कॉस्ट वुड बी 65 करोड़ पर एनम। तो स्टाफ का खर्चा ₹65 करोड़, इंश्योरेंस कॉस्ट इज 5 करोड़,
अदर रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट वो हम लोग बाद में कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लेट नहीं होने वाला है एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन। ये बाकी सब इंफॉर्मेशन जो हम लोग लिख रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो इन्फ्लेट होने वाला है। अपॉर्चमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस को तो जान ही देना है। और ये सब क्या होने वाला है? 5% से इन्फ्लेट होने वाला है, ऐसा हमको दे रखा है। सो व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू से उसको हमें 5% से इन्फ्लेट करना है। तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर डिप्रीशिएशन कॉमा टैक्सेशन कॉमा रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। उसमें 110.88 माइनस 15.12 माइनस 110.88 प्लस 15.12 प्लस 12.60 माइनस 65 माइनस 5 68.6। ये फ्रेंड्स हमारा कौन सा हुआ? इट इज इन द ईयर जीरो टर्म, करंट परचेसिंग पावर टर्म में हुआ। ये जो है ना फ्रेंड्स, इट इज इन द करंट परचेसिंग पावर टर्म। अभी हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोस। इन दैट ईयर जीरो, एंड ऑफ ईयर वन, एंड ऑफ ईयर टू, एंड ऑफ ईयर थ्री, एंड ऑफ ईयर फोर एंड एंड ऑफ ईयर फाइव। देखो यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसा दे रखा है कि ये जो एम्यूजमेंट पार्क है ना, उसका लाइफ 4 साल है। उसका लाइफ हमको दे रखा है से 4 साल। पर ये जो 4 साल है ना, वो 1 साल के बाद शुरू होने वाला है। देखो यहाँ पे ऐसा दे रखा है, दैट्स the estimated cost of the construction 450 crore and it would be completed in 1 year's time। यानी आज से 1 साल के बाद वो खत्म होगा और उसके बाद से वो हम लोग 4 साल तक उसके ऊपर दैट इज वहां पे बिजनेस करेंगे, ऐसा दे रखा है। देखो the after tax realizable value of the fixed asset after 4 years of its operation is expected to be this। यानी क्या होगा? ईयर जीरो और ईयर वन उसमें हमारा कोई भी बिजनेस नहीं होगा, हमारा सेकेंड ईयर से बिजनेस आना शुरू होगा। चलो राइट ऑन दिस मच आंसर। चलो ना देखो, ये जो रेवेन्यू है दैट इज प्रॉफिट बिफोर डिप्रीशिएशन कॉमा टैक्सेशन कॉमा रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ये हमारा सेकेंड ईयर से मिलना शुरू होगा। सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा फ्रेंड्स? 68.60 इंटू 1.05 रेज टू 2, क्योंकि 68.60 यहाँ का वैल्यू है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा? 5% से इन्फ्लेट करना पड़ेगा 2 साल के लिए। देखो यहाँ पे दे रखा है हमको, दैट से which are expected to increase at the rate of 5%। यानी हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स? 1.05 का स्क्वायर
into 68.6. That comes to 75.63. फिर सेकेंड ईयर में क्या होगा? सेकेंड ईयर में इसको वापस हमको 5% से इंक्रीज करना है. 75.63 into 1.05. So 75.63 into 1.05. 79.41. 79.41 into 1.05. 83.38. 83.38 into 1.05. 87.55. From that, we will deduct the depreciation. Depreciation हमारा यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है. Friends, over here we have to understand that the depreciation हम लोग सेकेंड ईयर से ही क्लेम करेंगे. That is से जहां से हमारा बिजनेस ऑपरेशन शुरू होने वाला है. ठीक है ना? 40, उसके बाद 32, उसके बाद 25.6, उसके बाद 20.48. फिर हमको यहाँ पे दे रखा है that other running and the maintenance costs are expected to be 25 crores Nepali rupees in the first year of the operation, which is expected to increase by 4 crore every year. Or it is not subject to inflation. So running and maintenance cost हमारा सेकेंड ईयर से शुरू होगा. It is an amount of 25, 29, 33 and 37. Like that, it is going to increase by an amount of 4 crore every year. उसके बाद हमको दे रखा है, बहुत सिंपल है, an amount of 450 crore to be paid in form of capital investment. उसमें क्या देने का है? हाफ अभी देने का है और हाफ हमको 1 साल के बाद देने का है. So construction cost it is an amount of 225 crore in year 0 and again 225 crore in the first year. फिर हमको वर्किंग कैपिटल दे रखा है. It is an amount of 65 crore. And क्वेश्चन में दे रखा है that say from end of year 1, यानी हमको फर्स्ट ईयर के एंड से चाहिए फ्रेंड्स. That is over here, it is 65 crore. एक मिनट ना, सॉरी फ्रेंड्स, वो टैक्स रह गया, इसको कैंसिल करता हूं मैं. I forgot to consider the tax.
So we understand that at this point of time we will be having so the amount of the profit to be calculated, और ये जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर हमको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा. Right answer. Profit before taxes 75.63 minus 40 minus 25. That comes to 10.63. 79.41 minus 32 minus 29. That is 18.41. 83.38 minus 25.6 minus 33. 24.78. 87.55 minus 20.48 minus 37. 30.07. उसके बाद हमको टैक्स का इंफॉर्मेशन ये रखा है. Tax rate is given to us as 20%. So profit after taxes is 80%. So 10.63 into 0.8. It is 8.50. 18.41 into 0.8. 14.73. 24.78 into 0.8. 19.82. 30.07 into 0.8. 24.06. This is the profit after taxes. In that we will add back depreciation. Why? Because depreciation is a non-cash item. So it is 4040, 32, 25.6, 20.48. उसके बाद हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का हमको वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में. इट इज 450. उसमें से हाफ अभी पे करने का है और हाफ 1 साल के बाद. दिस 450. So it is 225 in year 0 and 225 1 साल के बाद. Then we have to make investment in working capital. It is an amount of 65 at the end of the first year. क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस ऑपरेशन सेकेंड ईयर के एंड से शुरू होने वाला है. Friends, over here it is considered that, listen carefully, it is considered that कि इन्फ्लेशन रेट जो 5% है ना उसका इफेक्ट सब पे देने का है, एक्सेप्ट अ फ्यू आइटम्स व्हिच दे हैव मेंशन्ड. यानी 5% इन्फ्लेशन इनफैक्ट सबके ऊपर देने का है, एक्सेप्ट से अ फ्यू थिंग्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड ओवर हियर. तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कंसीडर करेंगे, लिसन केयरफुली, यहाँ पे हमको ऐसा कंसीडर करना है कि 65
इंटू 5%, यानी इतना हमको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, दैट इज 3.25, आई एम सॉरी, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, यानी बिजनेस ऑपरेशन का फर्स्ट ईयर, पर ईयर 0 से देखे तो सेकेंड ईयर। फिर 65 प्लस 3.25, यानी ये 68.25 है ना, अगेन उसका 5% का इन्वेस्टमेंट हमको करना पड़ेगा उसके सब्सिक्वेंट ईयर में, दैट कम्स टू 3.41, एंड सो ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। हम लोग ये इन्वेस्टमेंट कब तक करेंगे फ्रेंड्स? थर्ड ईयर के एंड तक कर देंगे, और फिर फोर्थ ईयर में हमको पूरा का पूरा उसका रिकवरी ले लेने का है। स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीनरी के लिए लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दे रखा है फ्रेंड्स। हमको क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है? हमको ऐसा दे रखा है, द आफ्टर टैक्स रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट आफ्टर 4 years इज 250 करोड़, यानी कि टैक्स को पे करने के बाद हमको 250 करोड़ मिलेगा, ऐसा हमको दे रखा है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं टर्मिनल कैश फ्लो, that is what we are going to receive at this point of time, 250 करोड़। फिर हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स? हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ऑनवर्ड्स सारे के सारे कैश फ्लोस का टोटल करेंगे, एंड दैट विल बिकम अवर नेट कैश फ्लो। चलो राइट डाउन आंसर, 68.25 प्लस 3.41, 71.66 into 5%, 3.58, उसके बाद 75.24 का रिकवरी आ जाएगा। So profit after taxes plus depreciation minus construction cost, working capital adjustment, टर्मिनल कैश फ्लो, उसके ऊपर से नेट कैश फ्लो आएगा। जैसे कि ईयर 0 में क्या लिखेंगे हम लोग? 225 का आउटफ्लो लिखेंगे। फिर एंड ऑफ ईयर 1 में क्या लिखेंगे? 225 प्लस 65, दैट कम्स टू 290 का आउटफ्लो। फिर एंड ऑफ ईयर 1 में क्या करेंगे फ्रेंड्स? 8.5 प्लस 4040 माइनस 3.25, तो कैश इनफ्लो आएगा 45.25। और फ्रेंड्स टेक्निकली इसको बोला जाता है नॉमिनल कैश इनफ्लो। नॉमिनल कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है कि इसमें इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट हो चुका है। 14.73 प्लस 32, यानी ये वाला वैल्यू, माइनस 3.41, यानी ये वाला वैल्यू, दैट कम्स टू 43.32। उसके बाद 19.82 प्लस 25.6 माइनस 3.58, 41.84, 24.06, 20.48, 75.24 plus 250, that is 369.78। ये जो हमारा नेट कैश फ्लो आया, उसको भी हमको क्या करना है?
जो ऊपर हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 1 में जो हमने ऑलरेडी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करके रखा है, उससे हमको उसको डिवाइड करना है। This is the weighted average cost of capital, 10.66. Step number 3, calculation of NPV. Year 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cash flows. It is 225 crore, 290 crore, 45.25 crore, 43.32 crore, 41.84 crore, 369.78 crore. उसको हमको डिस्काउंट करना है। At the rate 10.66. ईयर 0 का फैक्टर होगा 1, वन डिवाइडेड बाय 1.1066। फर्स्ट ईयर का फैक्टर होगा 9037, सेकेंड ईयर का 8166, 7380, 6669, 6026। 290 इंटू 0.9037, उसका प्रेजेंट वैल्यू होगा 262.07, 45.25 इंटू 0.8166, 36.95, 43.32 into 0.738, 31.97, 41.84 into 0.6669, 27.90, 369.78, 6026, 222, 0.83. Now all these cash flows will be discounted in present value term, और उसके बेसिस हम लोग एनपीवी का कैलकुलेशन करेंगे। It is 36.95 plus 31.97 plus 27.9 plus 222.83 minus 262.07 minus 225. That comes to 167.42 negative. तो एनपीवी नेगेटिव है, इसलिए हम लोग मना करेंगे कि आपको ये बिजनेस नहीं करना चाहिए।
सो हम लोग फाइनल डिसीजन लिखेंगे। डू नॉट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। फुल स्टॉप। मैं आपको पूरे क्वेश्चन का रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब यहाँ पे जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन करना है, इन दैट व्हाट विल हैपन डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा ऑफ लीवर्ड इक्विटी एंड बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी, जो आप अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में लर्न करते हैं, वो हमको यहाँ पे से अप्लाई करना है। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी। सर बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी का मतलब क्या है? बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी का मतलब ये है कि अगर कंपनी ने डेट फाइनेंसिंग रेज नहीं किया तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, उसको बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी कहा जाता है। वो कैलकुलेट करने के लिए वी टेक इनटू अकाउंट द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रॉक्सी फर्म। सर प्रॉक्सी फर्म का मतलब क्या है? प्रॉक्सी फर्म का मतलब ये है कि हमारा जैसा ही बिजनेस करती जो कंपनी होती है ना, उसको प्रॉक्सी फर्म कहा जाता है। सो वी अंडरस्टैंड इट्स द इक्विटी वैल्यू, डेट वैल्यू, जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है। हम लोग क्या करेंगे, उसका बाइफर्केशन करेंगे कि इक्विटी का वैल्यू क्या है और डेट का वैल्यू क्या है। एंड यूजिंग दिस वेरी सिंपल फॉर्मूला वी मेक द कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी, और बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी आता है 1.1061। अच्छा, उसके बाद हमको ऐसा दे रखा है डेट से हम लोग हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंस करने में 45% डेट का फाइनेंसिंग रखने वाले, ऐसा हमको दे रखा है। जितना डेट फाइनेंसिंग हम लोग रखने वाले हैं ना, उस हिसाब से वी हैव टू कंप्यूट द बीटा ऑफ लीवर्ड इक्विटी। इसका मतलब ये है कि जैसा कैपिटल स्ट्रक्चर हम लोग रखेंगे ना, उस हिसाब से बीटा हमको लगेगा, एंड दैट कम्स टू 1.83। उसके बाद आसान है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बीटा ऑफ द लीवर्ड इक्विटी, हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स रेट केडी फाइंड करेंगे, और उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 जैसा हो गया। बहुत ही आसान है। इट इज ओनली दैट से हम लोग ने कंसेप्ट नहीं किया होगा तो शायद ये थोड़ा हमको डिफिकल्ट लग सकता है। स्टेप नंबर 2, उसमें मैंने सबसे पहले प्रिपेयर करवाया एक बहुत ही सिंपल वर्किंग नोट, जो कि है डिप्रीशिएशन का। क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है कि आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना भी करो, हम लोग आपको 200 करोड़ से ज्यादा अमाउंट के ऊपर डिप्रीशिएशन क्लेम नहीं करने देंगे, ऐसा हमको क्वेश्चन में दे रखा है। सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम कैपिटल लिमिट ऑफ 200 करोड़। तो हमने 200 करोड़ के ऊपर डिप्रीशिएशन कैलकुलेट किया फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 4 इयर्स, दैट्स ओके। नाउ ये जो वर्किंग नोट नंबर 2 है, उसमें मैंने क्या किया वो मैं आपको समझाता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन में जो भी कैश फ्लोस है ना, उसका थोड़ा ग्रुपिंग जैसा कर दिया। कैसा ग्रुप किया मैंने कि that portion of the cash flow which is going to be affected with the inflation, and that portion of the cash flow which does not have any impact of the inflation, ऐसा करके हमने से उसका बाइफर्केशन कर दिया, जिसके ऊपर इन्फ्लेशन का इफेक्ट है और जिसके ऊपर इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं है, ऐसा करके। जो कैश फ्लोस के ऊपर इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं है ना, उसका मैंने ईयर 0 का वैल्यू कैलकुलेट किया। यानी उसमें क्या क्या है, एक तो एंट्री टिकट, एंट्री की टिकट का जो पूरा पैसा है वो हमारा इनकम ही है, तो 20,000 इंटू 70%, यानी नंबर ऑफ विजिटर्स एक दिन के इंटू 360, यानी पूरे साल के इंटू 220 हमको एक टिकट का मिलने वाला है, डिवाइडेड बाय 1 करोड़, उसको हमने करोड़ में कन्वर्ट किया।
फिर जो भी हम लोग फूड बेचेंगे उसका कंट्रीब्यूशन सेम वे, सेलिंग प्राइस इनटू कंट्रीब्यूशन परसेंटेज, कंट्रीब्यूशन ऑन सेल ऑफ द फैंसी आइटम, उसमें से स्टाफ कॉस्ट और इंश्योरेंस का खर्चा हमने डिडक्ट किया। तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ बिफोर कैलकुलेशन ऑफ द डिप्रिसिएशन, बिफोर कैलकुलेशन ऑफ द टैक्सेशन एंड बिफोर रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। ये ईयर 0 का वैल्यू है। उसके बाद उसको हमने क्या किया फ्रेंड्स, सेकेंड ईयर से हमको रेवेन्यू मिलना शुरू होगा। क्यों सेकेंड ईयर से? क्योंकि एक साल तो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन में चला जाएगा, उसके बाद शुरू होगा। यानी हमने क्या किया, ईयर 0 का रेवेन्यू हमने 2 बार इन्फ्लेट किया, एंड दिस इज द सेकेंड ईयर रेवेन्यू। उसको फिर थर्ड ईयर में कन्वर्ट किया, उसी को हमने फोर्थ ईयर में कन्वर्ट किया, और उसी को हमने फिफ्थ ईयर में कन्वर्ट किया, यानी एक एक साल आगे लेके जाए। डेप्रीशिएशन उस पर तो कुछ सोचने का ही नहीं है। रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ये रखा है फर्स्ट ईयर का 25, फिर 4-4 करोड़ से बढ़ता है। प्रॉफिट आ गया, उसमें से टैक्स दे करके पीएटी आ गया, एड बैक डिप्रीशिएशन, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ईयर 0 और बाकी का एक साल के बाद हम लोग पे करेंगे, ऐसा दे रखा है क्वेश्चन। हाफ विल बी पेड आफ्टर 1 ईयर। फिर वर्किंग कैपिटल ईयर 0 का 65, और लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि इन सब के अलावा बाकी सबके ऊपर इन्फ्लेशन का इफेक्ट लगेगा। ये जो है दे रखा है ना, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे नहीं लगेगा, असेट के रियलाइजेबल वैल्यू पे नहीं लगेगा, और रनिंग कॉस्ट पे नहीं लगेगा, बाकी सबके ऊपर लगेगा। इसलिए यहाँ पे एक हमारा स्पेशल एडजस्टमेंट है कि वर्किंग कैपिटल में भी एडजस्टमेंट लगेगा। यानी 65 का 5% मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर के एंड में। दोनों को ऐड करेंगे 68.25, अगेन उसका 5% इन्वेस्ट करेंगे। लास्ट ईयर में हमको पूरा का पूरा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाएगा। टर्मिनल कैश फ्लो बहुत ही अच्छा लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन दे रखा है, आफ्टर टैक्स दे रखा है, यानी जो भी टैक्सेशन का इफेक्ट है ना वो सब कुछ देने के बाद इट इज गोइंग टू रियलाइज एन अमाउंट ऑफ 250 करोड़। फिर सिंपल है, कैश फ्लोस को हमने कैलकुलेट किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस से लेके टर्मिनल कैश फ्लो सबका टोटल किया, एंड नेट कैश फ्लो आ गया। उसको डिस्काउंट करेंगे 10.66%, और एनपीवी अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव है, इसलिए हमने मना कर